So basically in coal and petroleum, in this we will learn that how they are formed, what are their properties. Before proceeding to that, we need to know about resources. Yes. So what is resources? So the materials we need for our survival. Sir, materials useful for beings. Anyone else? The things which we are dependent on for our daily life. The substances we use in our daily life. Substances which are used to fulfill our needs. So first of all, write down the definition of resources. So in this you can write the substance which occur in nature, in nature. Yes, and fulfill and full fulfill the needs of an organism. हाँ भाई, किससे किससे नहीं हुआ? सब हो गया, बहुत आसान हो गया। क्वेश्चन को आप नहीं कर पा रहे हैं। देखिए यहाँ पे। हाँ, देखिए सर। ये दोनों को मल्टीप्लाई किए। कर लिए। ये। For their survival. सब हो गया। सर एक बार तो इसके दिखा दीजिए। And their वही तो हम बता रहे हैं। and welfare of the society are called क्या बोलेंगे? रिसोर्स. क्लियर? Yes. So यहाँ पे हमने एक टर्म लिखा है नेचर. Means the substance which are available in the nature, they are considered as natural resource. Yes. And any country's natural resource, for example, any country having high value of natural resource, it means it will tell you about the strength or the potential of that country. जिन countries के पास natural reserve ज़्यादा हैं, they are much more richer than other countries. Clear? Hello. So we can say we have different types of resources. Yes. Can you tell me the example of any few resources? 2 7 जा 2 into 7 बराबर कितना? Hello. Resources. Natural resources. Is air a resource? 5 है। So water. 5 माइनस करते हैं कितना है? Is water a resource? Soil. Minerals. Petroleum. 5 into 1 आप देखिए 5 माइनस करने कितना है? Human. 9 आएगा है क्या ये? Etc. इसका मतलब है ये वाला All these are the resources. Clear? Which fulfill the needs of human being. Which fulfill the needs of human being. Clear? So if we consider types of resources, then we have two types of resources. हम ये कह रहे हैं कि 70 का देखिए 70 कहां से आया? इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा? Types of resources. x स्क्वायर को मल्टीप्लाई कीजिए -7 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं -7 से तो In types of resources, we will consider first one 70 in natural resources. x स्क्वायर Yes. ये आ रहा है। अच्छा अब Natural. इसको हम दो ऐसे मतलब इसको हम ऐसे पेयरिंग करेंगे, इसको पेयरिंग
करने के लिए हम सिलेबस का हम क्या लिखेंगे natural resources, एलसीएम लेंगे and the तो टू से second one is 5 आएगा फिर इसको 5 से देंगे तो कितना आएगा 7 artificial, or we can यहाँ say ऐसे पेयर बनाना है कि बीच में क्या आ man-made जाए, resources. 9x आ जाए। तो अगर हम इसको लिखेंगे 2 into 7 बराबर कितना होता है Man-made 14 resources. 5 into 1 Clear? बराबर 5 होता है। So in this, अगर हम इसको माइनस करते हैं in this first of all we अगर ये will माइनस explain में the है और ये natural प्लस में है, resource. ये प्लस होगा और ये What माइनस are the होगा, natural कितना होगा? resources? 9 The resources, माइनस 9 आएगा। The resources अब इसको कहाँ करना है? which यहाँ are पे करना है, obtained from इस पे क्लिक करेंगे, 10x मैंने कहा था ना फर्स्ट और From लास्ट को ऐसे तरह देते हैं जो भी करते हैं इसी का करते हैं। nature क्या करेंगे? माइनस 14x is called so. प्लस 5x Is called माइनस 7 प्रमाण natural आपका resource. डाटा में से कर रहा है। एग्जाम्पल दीजिएगा, बताइए। वाटर है, Sir, sunlight. मिनरल्स है, इसको हम क्या करेंगे? यहाँ पे देखिए 2 5 जा सॉयल है, 2 7 जा सनलाइट है, 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, x यहाँ पे भी x स्क्वायर है और x यहाँ पे भी। तो 2x so all these are the natural resource. Means to say any resource which fulfill the need of human, which fulfill the need of human, and what I said, existing in nature, means we are extracting or we are getting it from the nature. These kind of resources are known as natural resources. What are they called? They are called as natural resources. Clear? यही चीज तो बार-बार कह रहे हैं यहाँ पे लिखने में Yes, sir. In next we have 10x man-made resource. माइनस 14x है। इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं कुछ भी नहीं है, दिमाग नहीं चल रहा है, दिमाग चलाओगे तब चलेगा ना। In this we call as man-made resource. So what we will say them? The resource अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? Made by human beings. लिख सकते हैं 14 को और x है। अब हम ये कह रहे हैं, Resources इसमें क्या है? यहाँ पे देखिए x यहाँ पे भी है, made x by है, यहाँ पे human भी beings, है और यहाँ पे भी है। हम made by human beings तो क्या बचेगा? 5x and बचेगा their और क्या effort. सॉरी माइनस है इसमें और माइनस 7 बचेगा। यही चीज आया कि नहीं आया? आ गया भाई। और यहाँ ऊपर में, क्या बोलेंगे इसको? ठीक है? Sir, artificial or man-made resources. अब ये Artificial चीजें resource या synthetic resource या 5x माइनस बोलिए 7 उसके बाद So, man-made resources. कोई एक बोलो। प्लस 1 हो गया। अरे नेक्स्ट तो कोई बोलो। हेलो, नहीं बोलोगे? Anyone? Man-made resource, synthetic resource, Artificial natural resource, not natural, it is the artificial resource. Clear? They are not existing in nature. बात समझे क्या? Yes, sir. हाँ, एग्जाम्पल कोई देगा क्या? एग्जाम्पल कोई देंगे? The plastic. हाँ, अभी हमने कुछ देर पहले पढ़ा है ना प्लास्टिक्स के बारे में। और Sir, nylon. नायलॉन, ये तो उसका एग्जाम्पल हो गया, एटसेट्रा। क्लियर? अब हम लोग बात करते हैं नेचुरल रिसोर्स के बारे में इन डिटेल। सर आप पहले वाले पेज में दोबारा जा सकते हैं? जल्दी कीजिए। Yes, sir. इतना तो गारंटी है, जितना हम पढ़ाते हैं आपको अगर उतना सब उसको उतना ही क्लियर दे देंगे। 50 नंबर से लाने से कोई नहीं हो सकता।
लिखा गया? Yes, sir. 17 और 30 की बात 50 की बात कर रहे हैं, 80 की बात कर रहे हैं। लेकिन शर्त ये है कि जितना दे। So should we continue? अब देखिए Yes, sir. तो हाँ सर। सर आपके बैकग्राउंड से बहुत आवाज आ रही है। 14 में से कितना जाएगा? 9 चले जाएगा। So natural resource on the basis of abundance कि कितना अवेलेबल है और इसकी अवेलेबिलिटी कितनी है, इनके हिसाब से we have two types of natural resource. The first one is inexhaustible, means that cannot be end. Yes. And next one is the exhaustible, which can be exhausted, which can be ended in coming future. So exhaustible resources are two types: renewable source of energy resource and non-renewable, means which can be renewed again and again and which can't be renewed again and again. So these are, we have two types of resource, renewable और non-renewable. इतना क्लियर है सबको क्या? Yes. Yes. आगे बढ़ो. Yes, sir. Yes. आगे बढ़ो क्या? Yes. Yes, sir. हाँ, पहला लिखिएगा इसमें इनएग्जॉस्टेबल के बारे में. हाँ, लिखिएगा इनएग्जॉस्टेबल. क्या ये वो रिसोर्स है जो बहुत जल्द खत्म हो जाएगी? No, sir. ये अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड, इनएग्जॉस्टेबल. इसमें पहला पॉइंट लिखिएगा, रिसोर्स which are unlimited, which are unlimited in quantity. Clear? Means they are not likely to be exhausted in coming future. Clear? Yes, sir. Not likely to be exhausted in coming future. In coming future. क्लियर है? अरे बोलो. Yes. एग्जाम्पल इसमें क्या लिखिएगा? Sir, solar Sir, energy. air. क्या हुआ? Solar energy. Sir, air. एयर हो गया आपके पास, Water, sunlight. वाटर, सनलाइट. क्लियर? अरे बोलो. बेसिकली दिस इज द inexhaustible resources. Clear? Yes. Yes, sir. Should I move to next? Yes. Yes, sir. दूसरा लिखिएगा exhaustible. दूसरा सेकंड नेक्स्ट लिखिएगा exhaustible. So these are the resource which are limited in quantity, which are limited
and likely to be exhaust in coming future. Likely to be exhaust in coming future. क्लियर है क्या? वो भी बाय ह्यूमन एक्टिविटीज के हिसाब से। क्लियर है? इसमें अलग अलग टाइप का होता है आपके पास। रिन्यूएबल, क्या है आपके पास? नेक्स्ट है रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। अरे बोलो। Yes, sir. They are able to replenish, ये सही सुटेबल नहीं होगा। Can be replenished yes। इसको हम लोग रिसाइकलिंग या रिप्लेसमेंट भी कर सकते हैं विद इन अ पार्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम। क्लियर है? नॉट लाइकली टू बी एग्जॉस्ट इन फ्यूचर, इन नियर फ्यूचर, लेकिन काफी टाइम के बाद ये एग्जॉस्ट हो जाएगी। क्लियर है? अरे बोलो। Yes. नॉट लाइकली टू बी एग्जॉस्ट इन नियर फ्यूचर। इन नियर फ्यूचर। इसमें एग्जाम्पल लिखिएगा। अरे बोलिए। सॉइल है, फॉरेस्ट है, वाइल्ड लाइफ है। एनी मोर एग्जाम्पल? जो है तो आप उसको लिख सकते हैं। ठीक है? शुड आई मूव टू नेक्स्ट? Yes, sir. आगे बढ़ूं? Yes, sir. अगला लिखिएगा नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। नॉन रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल बोले तो विच कैनॉट बी रिप्लेनिश्ड। क्लियर? कैनॉट बी अरे बोलो। बाय रिसाइकलिंग एंड रिप्लेसमेंट, ऐसा हम नहीं कर सकते। will be exhausted in coming future। ठीक है? एग्जाम्पल आपके पास मिनरल्स, एग्जाम्पल है आपके पास फॉसिल फ्यूल्स। क्लियर है? अरे बोलिए। Yes. Yes, sir. आगे बढ़ूं? Yes, sir. नेक्स्ट लिखिएगा फॉसिल्स के बारे में। नेक्स्ट लिखिएगा फॉसिल्स के बारे में। जब फॉसिल्स के बारे में लिखेंगे आप लोग तो क्या लिखेगा? बेसिकली जितने भी प्लांट्स एंड एनिमल्स की डेथ होती है, एज दे आर द डिकम्पोजेबल सब्सटेंस, and after a very long period of time, millions and billions of years later, what forms they are come under the they can be what we can say it means इसका मतलब ये हुआ कि जो ये प्लांट्स और एनिमल्स हैं, ठीक है, लाइक इट में भी अर्थक्वेक हो, इट में भी वोल्केनो हो, या कोई भी नेचुरल कैलेमिटीज हो, दे कैन बी अंडर द सॉइल और बीनीथ द अर्थ
क्लियर? इसमें क्या होगा कि सॉइल की डिपोजिशन होगी अंडर हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर. They are converted into, after taking millions and billions of years, they are converted into fossils. So we can say that they are dead, they are remain of dead plants and animals which are getting buried during the under the rocks millions or billions years ago. They are called as fossils. एक होता है लिविंग फॉसिल, कभी नाम सुना है? एक होता है लिविंग फॉसिल. लिविंग फॉसिल बोले तो कि जैसे हम लोग क्या होता है ना कि कोई स्पेसीज मान लो एक्सटिंक्ट हो गया, जैसे ह्यूमन एजा स्पेसीज. ह्यूमन एजा एक ह्यूमन एक अलग स्पेसीज है, डॉग से एक अलग स्पेसीज है. हर वो अलग अलग चीज जो आपको दिखता है, हर वो लिविंग ऑर्गन जो आपको दिखता है अपने सराउंडिंग में, वो एक अलग अलग स्पेसीज है. हाँ कि ना? मॉस्किटो है वो एक अलग स्पेसीज है, इंसेक्ट का अलग अलग है, उसका अलग अलग स्पेसीज है. सो बेसिकली अगर वो एक्सटिंक्ट हो चुका है लेकिन अभी भी उनका कोई एक स्पेसीज किसी भी यूनिवर्स के किसी भी पार्ट में अभी भी अगर एग्जिस्ट करता है, दीज आर कंसिडर्ड एज क्या बोलेंगे बताइए? लिविंग So living fossil. Living fossils. मतलब एक्सटिंक्ट हो गया था लेकिन उसका आज भी कोई फॉर्म एग्जिस्ट करता है. बात समझे क्या? Yes, sir. इसमें लिखिएगा क्या लीजिए ना, लीजिए ना. They are remains of dead animals and plants they are remains of dead animals and plants which are buried, which gets buried under the rock millions of years ago. Millions of year ago मतलब लाखों साल पहले. बात समझ रहे क्या? Yes, sir. They are called fossils. लिखा गया? Yes, sir. एक पॉइंट लिखिएगा जिसे फॉसिल होता है. आपके पास नेक्स्ट क्या है? फॉसिलाइजेशन. नेक्स्ट क्या है? फॉसिलाइजेशन. ये अलग अलग रॉक्स के लेयर्स में अंदर दब जाते हैं और कभी कभी क्या होता है ना, एज इट इज कोई प्लांट्स या एनिमल्स रह भी जाता है. तो वहीं से हम लोग आर्कियोलॉजिकल जो डिपार्टमेंट होते हैं हर किसी का, हर कंट्रीज का, उसके थ्रू हम इसको क्या करते हैं? डिस्कवर करते हैं और पब्लिकली या पब्लिश किया जाता है. ठीक है? तो बेसिकली फॉसिलाइजेशन क्या होती है? द प्रोसेस of conversion of dead plants and animals, dead plants and animals into fossils.
is called fossilization. क्या इतना याद रहेगा? Yes, sir. Fossilization. क्लियर है? इसके अंदर जो फॉसिल्स अवेलेबल होगा दैट में भी बताइए. इट में बी कॉल, इट में बी पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस. क्लियर? नेचुरल गैस. क्या इतनी बात समझे क्या? Yes. Yes.